Alpana Butch was born in Dwarka, Gujarat. She was fond of acting since childhood. Coming from a film family, she started working in this field from a very young age. The actress, who has been associated with theatre for a long time, got recognition in the television industry from the 2010 show Papar Pol. After performing in this show, she was seen in many serials like Udan, Roop Mard Ka Naya Swaroop, Saraswati Chandra, Balveer, and Anupama. Tonight, we are really privileged to have her among us. Let's welcome Anupama ji in this very special episode of Star Darbar. And happy Women's Day and a very happy Holi to all of you. Hello, everybody. Yes, we are back again with such a bang. Yes, of course, it's Wednesday, and we are here, right here, with all of you to celebrate Women's Day. Yes, it's March 8th, and we are going to celebrate women. Well, I know that being a woman, we should celebrate womanhood every day of the year. And of course, that's what I do. I hope you do that as well. But, to make it really special for tonight's episode, I thought, why not ask someone who has enormous passion, and she is a quite dedicated actress in the Gujarati film fraternity and theater, and of course TV serials. I thought that would be really great that if you meet this beautiful, lovely lady, and she is none other than Alpana ji. Alpana ji, बहुत बहुत शुक्रिया, and we are really happy that you are here with me in my show. Hello and good evening to my all viewers of your Yup channel. Thank you very much for calling me, and I'm very glad that I'm right now interact with you guys. We are pretty excited. आज actually questions काफी डिफरेंट है, बिकॉज अल्पना जी, पहले मुझे एक चीज जो आपने रिक्वेस्ट की थी पहले, आई जस्ट वांट टू नो एंड में कि मैं वो कर पाई कि नहीं, ठीक है ना? तो शुरुआत जिससे करेंगे, द फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लव टू आस्क यू इज दैट हाउ वाज योर चाइल्डहुड एंड हैव यू एवर थॉट दैट यू विल बिकम एन एक्ट्रेस एट द टाइम? Not at all, not at all. Though my father was an art director, so we were very much connected with the drama, theatre, basically from theatre, Gujarati theatre. And my brother was that time he was also a student, but yeah, he always wanted to be a director or a writer or an actor. But I never wanted to be actor. Maybe because that time the society was not permitting to be an actor, especially for women. तो औरतों को तभी एक्टिंग करना या ये लाइन में जाना इतना अलाउ नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 30 to 35 इयर्स बैक की बात कर रही हूँ, जब मैं 15-16 साल की थी. तब इतना नहीं था. लाइक चलो एक्टिंग कर भी ली, पर घर की बहू एक्टिंग नहीं कर सकती है, ये दैट वाज द थॉट उस टाइम का. तो कर भी ली तो शौक के लिए 1-2 साल किया, फिर तो छोड़ना ही पड़ता था. तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगी. जो बच्चे जैसे जब छोटे होते तो उन्हें लगता है कुछ, तो वो टीचर को देखकर फैसिनेट हो जाते. तब मुझे लगा था मैं टीचर बनूंगी. फिर कॉलेज में जब मैं गई, दैट टाइम आई थॉट कि मैं इंटीरियर डिजाइनर बनूं, पर उसमें भी कुछ ऐसा हुआ कि क्योंकि मैं दूसरी कोई कॉलेज भी साथ में कॉमर्स कर रही थी, तो वो कुछ वर्कआउट नहीं हुआ. हाँ, थिएटर में इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स थिएटर कर रही थी, बट बहुत थोड़ा कमर्शियली थिएटर मैंने कुछ भी नहीं किया था. एंड माय फादर टोल्ड मी फ्रॉम द बिगिनिंग दैट यू आर नॉट सपोज टू डू द थिएटर, बिकॉज देन माय मदर वाज लाइक नहीं, फिर लड़के ढूंढने में दिक्कत होगी, नहीं करना है वो. तो एक्टिंग मेरा कभी पैशन ही नहीं रहा है कि मैं कभी एक्टर बनूंगी, चाहे स्क्रीन पे दिखूंगी. वो ड्रीम ही मैंने नहीं देखा था. देन आई मेट माय हस्बैंड कॉलेज के टाइम में, और लकीली उनके वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि चलो आप एक्टिंग छोड़ दो या एक्टिंग ही नहीं कर पाओगे. सो वो बहुत अच्छी फ्रीडम मुझे मिली थी. बट अगेन द सेम थिंग, माय हस्बैंड वाज एन एक्टर. अगर मुझे भी दोनों का एक्टर बनना, तो वही इश्यू हो जाता है सर्वाइवल का. तो किसी एक की तो सिक्योर जॉब होनी चाहिए थी. तो आई सेड, बिकॉज आई नेवर हैड दैट ड्रीम टू बिकम एन एक्टर, तो मैंने कह दिया कि मैं एक्टिंग छोड़ देती हूँ, मैं नहीं करूंगी, मैं ब्रेक लेती हूँ.
यू कैरी ऑन विथ योर एक्टिंग करियर। और मैंने आई वर्क 18 years एज एन अनाउंसर ऑन ऑल इंडिया रेडियो, आरजे। और मैंने एक्टिंग छोड़ दी, लाइक अच्छा। बहुत बड़ा 11 साल का मैंने ब्रेक लिया था। ऑन एंड ऑफ कभी कभी थिएटर करती थी, थोड़ा बहुत करती थी, पर कभी मैंने उसे परमानेंट फुल टाइम काम नहीं माना था। आफ्टर सर्टन ईयर्स, जब बच्ची हो गई, वो बड़ी हो गई, फिर मुझे लगा, और ऑफर तो आ ही रही थी तभी भी, तब माई डॉटर टोल्ड मी कि मम्मी अब तो काम शुरू कर, वी विल मैनेज, हम लोग सब मैनेज कर लेंगे। देन धीरे धीरे मैंने थोड़ा बहुत काम शुरू किया, एंड देन आई लेफ्ट माय जॉब, एंड नाउ फुल फ्लेज सिंस फ्रॉम 10 years आई एम डूइंग ओनली एक्टिंग। सो दो पीपल से कि मैं बहुत सीनियर हूँ, मैं सीनियर नहीं हूँ, मैं पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ, या बट क्योंकि मैंने मेरे 11 साल गवा दिए, तो मैं अब ये पूरे 10 साल में मैंने वो पहले के 11 साल का पूरा काम कर लिया, यानी एड्स भी की, फिल्म्स भी की, थिएटर भी किया, सीरियल्स भी की, जो काम आते हैं वो सारे काम को मैं हाँ बोलती हूँ। नो Uh, प्रॉब्लम। what do you think about this? Because you just said that you are from theater background, but then you have done movies and of course serials, a lot of things you are in. So what do you think that if someone wants to act, so the theater experience is very much needed for them? Very much. Theater is must for every actor. आपको how to speak, how to stand, how to perform, how to react, how not to react, how to entry, exit कैसे लेना, everything you can learn from theater. So theater is very much, theater is very tedious, theater बहुत थका देता है। थिएटर से ही आपको ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। सो थिएटर इज वेरी मच। हाँ, हर एक्टर का ऐसा होता है कि जब थिएटर करते हो तब हमारा सपना होता है कि हम फिल्म करेंगे, बड़े पर्दों पे दिखेंगे। पर जब आप फिल्म कर लेते हो, आप 2, 4, 5, 6, 10 फिल्म कर लेते हो, फिर उस वहां पे भी एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, क्योंकि फिर एक ही तरह का कैरेक्टर आपको मिलने लगता है, तब जाके, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट लकी लाइक पंकज त्रिपाठी और बोमन ईरानी के, उनको हर टाइम कुछ अलग मिले करने को। सो तो एक स्टीरियोटाइप वहीं पे भी कैरेक्टर मिलने लगते हैं, तब वापस हमें लगता है कि अब हमें थिएटर करना चाहिए। सो एक्टर हमेशा पहले थिएटर करता है, थिएटर से फिल्मों में जाता है, फिल्मों से वापस जब उन्हें लग रहा है कि नाउ अगेन आई वांट टू लर्न समथिंग, आई वांट टू अनलर्न फिल्म्स, आई वांट टू लर्न समथिंग, वापस कुछ मुझे अपने आप में वो एनर्जी लानी है, तब वो अगेन गो बैक टू थिएटर। सो ये थिएटर सिर्फ मूवी टू थिएटर, ये प्रोसेस एक्टर के लिए चलती रहती है। सो लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? ऑफ कोर्स घर से तो है ही, बट लाइक फिर से जो दोबारा जो आपने शुरू किया, उससे भी पहले की बात बोल रही हूँ कि जब आपने सोचा था कि ठीक है चलो शुरुआत करते हैं, फिर हुआ, एंड देन देयर वाज अ गैप एंड देन अगेन यू केम बैक। तो लाइक इंस्पिरेशन जो है वो कहाँ से मिला? कहीं से भी नहीं, इंस्पिरेशन से ज्यादा मेरा खुद का इंस्टिंक्ट ही मुझे बता रहा था कि नाउ लेट्स डू एक्टिंग। कहीं से नहीं, क्योंकि किसी से आप इंस्पायर होके आपने एक्ट नहीं कर सकते हो, इट हैज टू बी इनसाइड योर, अंदर कुछ होगा नहीं तब तक। चाहे आप अमिताभ बच्चन को इंस्पायर होके आप अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते, आप उन्हें देख सकते हो, आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा इमिटेट कर सकते हो या कुछ सीख सकते हो, पर इंस्पायर होना तो अपने आप में ही है। आपको खुद को ही डिसाइड करना होता है कि व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। To know acting, right? To know acting or like become an actor. So what are the things that someone should really follow? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। आपको हर किसी को ऑब्जर्व करना है, हर किसी को इन द सेंस आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर एक आपके घर में मेड सर्वेंट हो तो वो कैसे बात करती है, उसके काम करने का, उसके बात करने का तरीका कैसा है, लहजा कैसा है, उसकी कैसी बॉडी लैंग्वेज है। आपको हर ऑब्जर्वेशन कर करके हर किसी की बॉडी लैंग्वेज देखनी होती है, क्योंकि दो आई एम ए नॉर्मल हाउस वाइफ, और अगर मुझे रोल मिला, कैरेक्टर मिला जहां पे मुझे कोई बिजनेस वूमन का करना, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू लुक डिफरेंट, आई टू परफॉर्म डिफरेंट। तो वो बॉडी लैंग्वेज, वो सब के लिए हमें ऑब्जर्वेशन करना है, तो ऑब्जर्वेशन इज मस्ट। फर्स्ट और फॉरमोस्ट थिंग मैं बोलूं तो ये है कि आपको अपने आप को पहले भूलना है, यू हैव टू फॉरगेट योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं भूल पाओगे, अगर आप अपने आप को
याद रख के काम करोगे तो वो कभी नहीं होगा, देन वो ईगो बीच में आ जाएगा, कभी कभी अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाएगी। आपको कंटिन्यूअस ये भूलना होगा पहले कि अभी मैं जो परफॉर्म कर रही हूँ वही मैं हूँ। तब मैं ना बीबी हूँ, ना माँ हूँ, ना किसी की बच्ची हूँ, या मैंने इतना अचीव किया है, ना मैं स्टार हूँ। शायद अगर मुझे कोई ऐसा रोल मिले जहां मैं बहुत, आई एम पुअर, आई डोंट हैव मनी, और आई एम बेगिंग समथिंग, या मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ, तब अगर मैं मेरी बीएमडब्ल्यू को याद करूंगी तो ये परफॉर्म नहीं होगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको खुद को, अपने आप को भूलकर वो कैरेक्टर में जाना है, फील करना है, तब जाके आप एक्टर बन सकते। हम लोग एक्चुअली बाहर से बहुत सारी स्टोरीज सुनते तो रहते हैं, और एक चीज लाइक हमेशा मैं पूछना चाहती थी किसी ना किसी को, तो आप ही से मैं पूछ लेती हूँ कि हम लोग ऐसे जो लाइक हमारे जो नॉर्मल लाइफ है, वी ऑलवेज यूज द वर्ड अबाउट लाइक बुलिंग, है ना? तो लाइक बुलिंग क्या फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है? क्वेश्चन इज योर आंसर। बुलिंग फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है, यानी और जगह तो होता ही है। सो लाइक हम स्कूल में जाते हैं, जब नए नए स्टूडेंट होते हैं, अगर हम कोई दूसरी स्कूल में गए तो वहां बुलिंग होती है। हॉस्टल्स में जाते हैं, वहां बुलिंग होती है। कॉर्पोरेट लेवल पे भी लोग थोड़ी बहुत बुलिंग कर लेते हैं, पर वो डिफरेंट तरीके से करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। ओनली थिंग, बिकॉज वी आर इन टू मीडिया, हम लोगों से ज्यादा अटैच है सोशली, हम लोग, हमारी लाइफ दिखी जाती है, तो हमारी या हमसे की गई बुलिंग दिखाई देती है। या बुलिंग होती है, बुलिंग इन लोगों के लिए ज्यादा होती है कि जो न्यू कमर्स होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता है, तो उनसे उनसे ज्यादा लोग करते हैं। बट लकीली आई वॉज फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ मेरे फादर आर्ट डायरेक्टर थे, माई ब्रदर वॉज अ डायरेक्टर, माई हस्बैंड वॉज एन एक्टर। सो बहुत सिक्योर्ड फैमिली से मैं आई थी, तो इतनी बुलिंग की मेरे लिए वो पॉसिबिलिटी मेरी कम हो गई थी। बट बुलिंग होती है, पर कोई उस तरह की बुलिंग नहीं होती है। हाँ, कभी कभी आपको काम आता है कि नहीं, एज एन एक्टर यू हैव मेच्योर्ड, और आप सीख कर आए हो कि नहीं, वो देखने के लिए वो लोग बुलिंग करते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैं हमेशा सोचती थी अल्पना जी कि अच्छा कैसे होगा लाइक द इनसाइड स्टोरी। और एक चीज तो पूछना ही है आपसे कि इतने सारी बातें हो रही है तो योर सबसे ज्यादा जो खास मोमेंट आपको लगा है आज तक, एक बार अगर आप शेयर करेंगे हमारे साथ। एज फार एज एक्टिंग करियर की बात, अगर आप यू आर टॉकिंग अबाउट माई हाँ काम जी, के, हाँ जी, तो हाँ जी। 2012 में मुझे फोन आया था। मैंने बहुत ऐसे ही, क्योंकि दैट टाइम आई वाज नॉट अ रेगुलर एक्टर, लाइक एक्टिंग ही मेरा प्रोफेशन नहीं था, तब तो मैं जॉब कर रही थी। फिर भी मैंने जस्ट ऐसे ही कि चलो दे तो दूं, ऐसे करके मैंने एक ऑडिशन दिया था। स्टार प्लस पे एक सीरियल आने वाली थी, सरस्वती चंद्र। सरस्वती चंद्र, ये इट्स अ वेरी वेल नोन नॉवेल, गुजराती की, गुजराती बैकग्राउंड पे पूरी फिल्म भी बनी थी, नूतन जिसमें थी। तो हाँ, यस। हाँ, या तो उसी पे सीरियल बन रही थी, और मुझे पता चला कि इसके ऑडिशन चल रही, तो मैंने बोला चलो दे तो हूँ, देने में क्या है, कोई देखेंगे तो अच्छा है, नहीं है मेरे खुद के लिए तो मैं देख रहा। और मैंने वो ऑडिशन दिया था, और आई गॉट अ कॉल फ्रॉम संजय लीला बंसालीज ऑफिस दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द ऑडिशन, तो प्लीज डू कम फॉर अ लुक टेस्ट एंड एवरीथिंग। सो या, डेफिनेटली दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, जो मैं याद रखूंगी। What are the steps actually, we always hear the word audition, है ना? तो ऑडिशन के बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं आगे बढ़ने के लिए? सबसे पहले तो एक बेसिक सा ऑडिशन होता है, जिसमें वो बहुत सारे एक्टर को वो स्क्रिप्ट भेजी जाती है। तो वंस अपॉन अ टाइम बिफोर पैंडमिक, आपको ऑफिस में जाके ऑडिशन देना होता था। जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं वहां पे जाके आपको अपने आप को प्रिपेयर करके, थोड़े बहुत कॉस्ट्यूम, थोड़ा मेकअप के साथ आप वहां जाते हो, वहां ऑडिशन देते हो, वो ऑडिशन उनको अच्छा लगा। तो अब ऐसा नहीं है, अब तो आप ऑनलाइन भी ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेज सकते हो।
तो एक बार हमने ऑडिशन दिया, सपोज वो एक चाची का कैरेक्टर है, उस चाची, तो मैं खुद एज एन एक्टर पहले तो वो स्क्रिप्ट देख के मुझे समझना है, कास्टिंग डायरेक्टर का भी ब्रीफ होता है कि ये चाची कैसी है, ये चाची स्वीट है, ये चाची थोड़ी कनिंग है, ये नकचड़ी है, या ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ग्रे शेड में है। तो ये चाची, और डायलॉग से भी हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये चाची ऐसी है। तो उस हिसाब से हम अपने आप को पहले एक्टर प्रिपेयर कर लेता है कि ओके मुझे ऐसा बोलना है, ये सब बोलना। फिर उस ये चाची कौन से एज ग्रुप की है, उस हिसाब से हम कपड़े थोड़े बहुत अपने घर में जो हो वो हम पहन ले, थोड़ा बहुत जूड़ा बुड़ा, चाची है तो जूड़ा बांध लिया, थोड़े बाल बांध दिए, ऐसे ऐसे में मैं चाची नहीं अपने आप को दिखा सकते, बिंदी बिंदी लगा दी। और फिर जाके मैंने वो रिकॉर्ड किया, तब मैं यही देख रही हूँ कि पहले तो वो कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करती, गुजराती, मराठी, तो एक्सेंट हम उसमें वी कैन पुट दैट एक्सेंट इनटू इट, थोड़े बहुत इंटोनेशन, बॉडी लैंग्वेज उस हिसाब से हम करते हैं। ये सब पूरी, कोई भी एक्टर को, कोई भी कैरेक्टर को, चाहे वो ऑडिशन देना हो, एक्टिंग करना है, पहले वो कैरेक्टर क्या है वो अपने आप सोचना पड़ता है। ऐसे ही डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट दे दी और आप बोल कर नहीं चले जाते, इसे हमें पूरा डिसाइड करना पड़ता है कि अच्छा ये कैरेक्टर शायद ऐसे खड़ा रहता होगा, ऐसे खड़ा रहता होगा, ऐसे। और इस तरह से हम ऑडिशन देते हैं, ऑडिशन अच्छा लगा तो प्रोडक्शन हाउस हमें फिर से बुलाता है, फिर से वो ऑडिशन उसमें कुछ ऐड करके नहीं आपने जो वो किया था वो ऐसे मत बोलना, ऐसे बोलना, ये थोड़ा सटल वे से करो, या इसमें थोड़े और रिएक्शन डालो, ऐसे करके प्रोडक्शन हाउस खुद अपना एक ऑडिशन अपने प्रॉपर कैमरा में, क्योंकि ये तो फोन से दिया गया होता है, प्रॉपर कैमरा में वो ऑडिशन सामने क्यूज देकर एक पूरा सीन आप परफॉर्म करके, वो फिर प्रोडक्शन खुद देखते हैं, प्रोडक्शन हाउस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, कि हाँ ये फिट है ये कैरेक्टर के लिए। देन इट गोज टू चैनल, चैनल ऑल्सो डिसाइड कि यस आई नो दिस एक्टर, और या दिस कैरेक्टर के लिए दिस इज फाइन। देन जाके वो अगर मीन्स हम प्रोडक्शन हाउस से शॉर्टलिस्ट हो गए, तब हमें बुलाया गया वो प्रोडक्शन हाउस में, प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन देने के बाद इट वेंट टू चैनल, जब चैनल में हो गया तब हमें वापस फोन आता है कि यू हैव बीन ऑलमोस्ट फाइनलाइज, नाउ टेल मी द बजट। सो बजट के हिसाब से जो भी डिस्कशन होता है, इफ आई फिट इनटू दैट बजट, और देन इट फाइनलाइज, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और फिर जाके वर्कशॉप थोड़ा बहुत जिसमें कैरेक्टर डायरेक्टर समझाते हैं कि वी वांट लाइक दिस दैट दैट, और फिर कॉस्ट्यूम ट्रायल्स होती है, उस तरह से कॉस्ट्यूम्स बनते हैं, और फिर जाके शूटिंग होती है। सो इट्स अ बिफोर ऑडिशन, if it's a new serial then it's a process after audition to shooting, almost 2 months process, 1 or 2 months। और अगर शूट ऑलरेडी सीरियल कोई चल रही है और उसमें कोई नया कैरेक्टर ऐड करना होता है तो इट्स 4-5 days प्रोसेस। वाह, तो इतने सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस सबको तो आप देखते हैं, मिलते रहते हैं, खास क्या लगता है आपको, लाइक the question I should ask is that what do you think about the quality, कि वो जो पर्दे पे जैसे हैं और आम इंसान के तौर पे जब आप लोग मिलते रहते हो, so how is that feeling? क्योंकि बाहर से जब हम देखते हैं आप सबको तो of course like a celebrity, like a star, तो so आप सब में जब बातचीत होती है तो how is that? See, every human being is different, so I can't journalize this, journal statement तो मैं नहीं देख सकती हूँ, बट लोग ऐसे बोलते हैं कि स्टारडम है, बहुत ईगो आ गया है, बहुत पावर है, ये है, वो सब बातें गलत होती है। मे बी जब आप किसी से अप्रोचेबल नहीं होते हो तो वो उनकी थॉट होती है, उनकी थॉट प्रोसेस में ऐसा होता है कि दिस पर्सन इज नॉट गुड और नॉट बैड, अनलेस एंड अनटिल you don't meet that person, you don't talk to them, you cannot जज एनीवन। सो ये ऐसी ही बात है। सो स्टार बन गए इसलिए अब मिल नहीं रहे, अब अच्छी, ऐसा कुछ नहीं होता है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि द टाइम व्हेन यू मेट दैट पर्सन ही मे नॉट बी इन दैट गुड मूड, ही और शी, या कुछ और उनके मन में कुछ चल रहा होगा और कोई प्रॉब्लम से जा रहा हो, इसलिए शायद उस टाइम आपके साथ उसने अच्छी तरह से बात नहीं की। तो आप कहीं किसी को भी ऐसे जज तो नहीं कर सकते हो। मीट दैट पर्सन, यू टॉक टू दैट पर्सन, आप उनसे बहुत ज्यादा वक्त बिताओ, बाद में ही आप बोल सकते हो कि ही इज गुड और बैड, और ही इज नाइस पर्सन और नॉट अ गुड पर्सन। सही बात है। अच्छा, अभी आप ये बताइए that how do you describe yourself in 5 words? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अडॉप्टिव, वेरी अडैप्टिव, क्योंकि
आज की जनरेशन के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, और टुडेज जनरेशन इज वेरी डिफरेंट, दे आर वेरी टेक्नो सेवी है, उनकी थॉट्स अलग है। तो अगर मैं सीनियर हूँ, मैं बड़ी हूँ, सीनियर तो नहीं अपने आप को कहती हूँ, पर बड़ी हूँ उम्र में, तो उन्हें आके अब मुझे मेरे पैर छूने हैं या मैं बोलूँ ऐसा ही करना है, ये सब नहीं कर, मैं करती हूँ। मैं उनके जैसी बन जाती हूँ। लाइक मेरी को एक्टर अगर 25 साल की है, तो उनके थॉट प्रोसेस, उनकी जो आइडियाज है, वो मैं ज्यादा कैच करना चाहती हूँ, ताकि मुझे अच्छा भी लगता है कि आज सोसाइटी में क्या चल रहा है, ये भी पता चला। तो एज एन अल्पना, ए फॉर अल्पना, आई एम वेरी अडेप्टिव, ए एल एल आई एम लवेबल, या पीपल रियली लव्स मी। लाइक मेरी मेरी आई एम वेरी थैंकफुल, मुझे बहुत अच्छी यूनिट मिली है अनुपमा की, एंड एवरीबडी लव्स मी अलॉट। सो आई एम लवेबल, ए एल पी पी स्टैंड, आई एम वेरी प्रैक्टिकल, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। मैं कोई भी चीज को पकड़ के नहीं बैठती हूँ, लाइक नहीं ऐसा क्यों, ऐसा ही मैं, ठीक है, इट इज गुड फॉर एवरी वन, जस्ट एक्सेप्ट इट। सो मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं कोई इमोशंस पे थोड़ी कम जाती हूँ, क्योंकि इमोशनली आप जब बहुत इमोशनल हो जाते हो, तो फिर लाइफ में आपको दुखी होना है, ये तो दैट इज द ये तो एक है ही, आपको कोई इतना भी ना चीट कर जाए इमोशनल हो गए। तो आई एम वेरी प्रैक्टिकल, ए एल पी, ए फॉर एफर्मेटिव, आई एम वेरी पॉजिटिव। मैं किसी में, मैं कभी भी बहुत बहुत यानी रेयर पॉइंट पे मैं कह सकती हूँ कि ये आदमी अच्छा नहीं है, ये दिस इज नॉट डन, ये दिस थिंग इज नॉट प्रॉपर। मैं आई आई ऑलवेज, ठीक है ये है, ओके फाइन, एक्सेप्ट इट। सो एफर्मेटिव, ए फॉर एफर्मेटिव, एंड फॉर नीट, नीट आई एम, मुझे सब कुछ ठीक चाहिए। अगर ये पिलो यहाँ से यहाँ है, वो राइट में रहता है तो वो राइट में ही रहेगा। मैं बात करते करते भी दो तीन चीजें अभी यहाँ से यहाँ रख दूंगी, तो थोड़ी लाइक लिंसोमेनिया हूँ, आई कैन से। एंड या आई एम लिटिल ऑथोरिटेटिव, लाइक ऑथोरिटी तो है मुझ में, लोगों को लगता है ऐसा। सो बस दैट्स इट। सो नेगेटिव पॉइंट्स तो है मेरे में भी थोड़े, बट आई नो दैट इट्स नेगेटिव पॉइंट आई हैव। Okay, I love the explanation, the way you said it. So what makes you smile and what makes you or I can say that which incident you really get scared? First of all, company of my daughter. When she Mm. smile, definitely I smile because Mhm. she's everything for me. Mhm. Good friend, good company makes me smile. Mhm. Mhm. Or That's it. Anything good you see in the world, you have to smile. of course. But what really makes you scared? अब डर जाते हैं किससे? और डरते हैं भी क्या कभी? डर वो भी तो बात है। डर का ऐसा होता है कि डर ना एज वाइज बदलती रहती है। हाँ। लाइक जब हम छोटे होते हैं तो हमें डर लगता होता है टीचर का, कॉलेज में आते हैं तो लगता है कि आगे जाके हमारे करियर क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, तो हम इस बात से डरते हैं। फिर जब हम माँ बनते हैं तो बच्चों की हेल्थ के इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स में हम डर जाते हैं कि कैसे सब मैनेज कर पाएंगे, तो हम डरते हैं। बट धीरे धीरे एज एज जब बढ़ती है आफ्टर 40, हमारा डर कम होते जाता है, क्योंकि हमें पता है कि नथिंग इज परमानेंट, सब प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होती है, धीरे धीरे हर प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी, बदल जाएंगे। सो फाइन फाइन, एवरीथिंग हैपन, जस्ट गिव अस अ टाइम। तो ये बात है, तो डर कम हो जाता है। बट एज एन एक्टर, यस, एज एन एक्टर एक डर अब ये लगता है कि जब आप इतना कुछ नाम कमा लेते हो, या इतना प्यार जब ऑडियंस से अभी मिलने लगा है, स्पेशली जब अनुपमा की बात हो रही है, सीरियल की बात हो रही है, तो एक ही यही डर लगा कि अगर ये सीरियल खत्म हो गई, कभी ना कभी तो किसी के प्रोजेक्ट को खत्म कर होना ही है, बस होना है, तब उसके बाद अगर वो सन्नाटा, एक पूरा जो वैक्यूम हो जाएगा, तब क्या होगा, वो डर एज एन एक्टर सबको रहता है। Your favorite role till date? आई थिंक लीला का रोल, बिकॉज ये रोल मैंने कभी नहीं किया था। सिंस फ्रॉम 10 years आई एम डूइंग अ वेरी गुड मदर, स्वीट मदर का परफॉर्मेंस। आई डू कॉमेडी अ लॉट, गुजराती फिल्मों में मैंने बहुत कॉमेडी की है, पर इस तरह का रोल, लाइक इट इज डेफिनेटली अ ग्रे शेड, लाइक लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, पीपल स्टार्ट हेटिंग मी व्हेन आई एम वेरी बैड टू अनुपमा। तो वो चीज मैंने कभी की नहीं थी, दिस काइंड ऑफ रोल। तो डेफिनेटली लीला इज अ वेरी
very different role for me. I had learned lots of things. मैंने बहुत कुछ सीखा है उससे. How does it feel to be a star? आपको लगता है? First of all, I'm not a star. Not at all. I'm not at all a star. हम मानते नहीं. और सेम थिंग, स्टार को भी पता है कि ये दिस इज नॉट अ परमानेंट. यू कैन नॉट बी अ स्टार फॉर लॉन्गर टाइम लाइक परमानेंट. लाइक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान इज अ स्टार, बट अदरवाइज एवरीबडी इज एन एक्टर. तो स्टार वर्ड बहुत ही टेम्पररी वर्ड है. इट्स लाइक अ न्यूज़पेपर. दूसरे दिन जो रद्दी हो जाती है, दूसरे दिन एपिसोड खत्म, आप खत्म, ऐसी बात है. सीरियल खत्म, आप खत्म. प्रोजेक्ट खत्म, आप खत्म. So I don't think I'm a star. आपसे और एक चीज मुझे लग रहा है कि एक बार मैं पूछ ही लूं अभी, कि अभी आजकल एक like I can say that everyone is talking about this, that is body shaming. What is your thoughts about that? See, nowadays the consciousness of figure, body to look good has become too much. Like school ki ladkiyan bhi, school girls also become so conscious about their figure, that you should look like star. आपको सबको हीरोइन दिखना है. सबको ऐसा लगता है कि we should look good, everybody should look at us. तो इसकी वजह से, ये कॉन्शियसनेस की वजह से बॉडी शेमिंग बहुत कुछ बढ़ गई ये बात. अब एज अ वुमन ऑल्सो, लाइक आफ्टर 40s ना, औरतें खुद भी थोड़ा अपने आप को ऐसा लगने लगा है उनको कि अरे अब मैं मोटी होने लगी हूँ तो आई एम नॉट लुकिंग गुड. कंटिन्यूअस कॉन्शियस, मिरर में देखना, जिम जाना, डाइट करना, डाइट फॉलो करना. डाइट कर रहे हो तो आपके बाल अच्छे नहीं, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके नेल्स खराब हो रहे हैं, आपकी स्किन पे चेहरा दिखता है, चेहरा आपका थोड़ा सा. तो ये बहुत सारी बातें ऐसी है कि एक बॉडी शेमिंग की वजह से पूरी सोसाइटी में लोग इतने कॉन्शियस हो गए खाने पीने में. सो जो जिंदगी का मजा जो लेना है वो सब कम हो गया है. आपको मिठाई दिख रही है, आप मिठाई नहीं खा रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि अरे वेट बढ़ जाएगा, कोई मुझे वापस बोलेगा अरे इतनी मोटी क्यों हो गई. तो ये जो बॉडी शेमिंग है, या बॉडी शेमिंग इज देयर इन द सोसाइटी, इट इज गोइंग टू बी इन द सोसाइटी. इनिशियली इट वाज, मे बी लाइक आज से 20 साल पहले भी होता होगा, पर तब हमने हमारी मम्मी को, हमने माँ को हमने ऐसे ही एक्सेप्ट किया था जैसी वो है. तो आजकल के बच्चे भी अपनी मम्मियों को ऐसा फिगर वाली, अच्छी वाली, जैसे हीरोइन है और ऐसे ही देखना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बढ़ गया. इंस्टा पे आप रोज देखते हो कि ये फंक्शन में ये नीतू सिंह ऐसी लग रही है. अगर नीतू सिंह ऐसी लग रही है तो मम्मा तुम क्यों नहीं लग सकती हो. सो ये बात होता है. तो इवन बच्चे भी अभी अपनी मम्मियों को कंपेयर करने लगे हैं फिल्म स्टार्स से या हीरोइन से. तो ऐसा नहीं होता है. पहले हम जैसे थे लोगों को वैसे एक्सेप्ट करते थे, अब ऐसा नहीं है. अब बहुत कुछ लोगों को सब कुछ बेस्ट चाहिए, परफेक्ट चाहिए. बट परफेक्ट बॉडी सबकी नहीं होती है. जो है उसे एक्सेप्ट करो, या आप ट्राई टू बिकम अ हेल्थी. वो मेरा एक फंडा है कि, और या ऐसा भी नहीं कि आप जो मन में आए वो खाओ. थोड़े बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहो, जितना हो सके उतना कर लो, पर पागलपन छोड़ दो. बेस्ट दिखने का, परफेक्ट दिखने का पागलपन छोड़ दो. 40-50 के बाद औरतें जो लगती है वो लगती है. बॉडी में चेंजेस आते हैं वो आते हैं. जस्ट एक्सेप्ट इट एंड जस्ट बी हैप्पी इन योर लाइफ. Alpana ji, as you said, we are really going to go in different ways next week, because time we're almost done, okay? But I'm really sorry to stop you like this, but you know what? We are going to be back again next week because I want to talk to you more and we would love to know more about your thoughts. So friends, please, please, please enjoy tonight, enjoy every day, and do not forget to come back for more, of course, with me, है ना? वापस आ जाना अगले हफ्ते, and I will see you again. Thank you so much. Love you all.